नमस्कार दोस्तों, यादव क्लासेस की हॉट सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज तक हमने बहुत अच्छे अच्छे हॉट क्वेश्चन देखे हैं। बोर्ड की एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आपके पढ़ाई करने का स्पीड भी आपका बढ़ रहा है, ये मुझे मालूम है। और अब लास्ट स्टेप में आप हॉट क्वेश्चन की तरफ ही ज्यादा ध्यान देते हैं। हॉट सीरीज में हमने आज तक अलजेब्रा, ज्योमेट्री सभी के क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हॉट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस साल सिर्फ 4 लेसन अलजेब्रा में बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए पहले तो 4 लेसन में से 3 क्वेश्चन 4 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आने की संभावना 90% पॉसिबिलिटी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ध्यान में रखना है आपको। इस लेसन में 2 फार्मूले। ओके, फर्स्ट फार्मूला Tn दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फर्स्ट फार्मूला है। ओके, तो फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP, करेक्ट। नाउ second formula is Sn that is equal to n upon 2a plus n minus 1 d। समझ में आया? ओके, देखो सॉरी दोस्तों, देखो ये 2 फार्मूले यूज करके हमें सभी प्रूफ्स या सभी बड़े छोटे सब 1 2 3 4 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये फार्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी। दिस फार्मूला सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, बराबर है। ध्यान में रखो, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, ध्यान में रखो। देखो, पहला हॉट क्वेश्चन देखेंगे। हॉट्स में फर्स्ट हॉट्स है, फर्स्ट हॉट क्वेश्चन। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म, प्रॉब्लम सेट में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम सेट में एक क्वेश्चन दिया है आपको। कौन सा क्वेश्चन है वो? इफ m टाइम्स of the nth term is equal to n times of the nth term, then show that its m plus nth term is 0। okay, उसी के आधार पर दूसरा एक क्वेश्चन है, if 7 times the 7th term। देखो क्वेश्चन क्या है, if 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term of an AP, then show that its 18th term is 0। देखो क्वेश्चन क्या है, if 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term, okay, then we have to show that its means 18th term of that AP is 0, correct। देखो, first of all we have to think about which of these 2 formulas we have to apply, which formula here in this question. See what is here, this is 11th term, 7th term, 18th term, okay, therefore we have to apply first formula,
What is the formula? Tn equal to a plus n minus 1 d. Suppose आंसर में देखेंगे, देखो, let first term of an AP be a and common difference be d. करेक्ट? समझो हमने क्या कंसीडर किया है? फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेवेंथ टर्म? ओके, वी नो द फार्मूला. we have what is Tn equal to a plus n minus 1 d. We know the formula. Tn equal to a plus n minus 1 d. Correct? Therefore, see now by or from the given condition, what is the given condition? 7 times the seventh term. 7 times the seventh term. ध्यान में रखो, 7 times the seventh term. What is 7 times the seventh term? Okay, देखो, what is the condition? 7 times मतलब multiplication. The seventh term is equal to 7 times the seventh term is equal to 11 times the 11th term. 11 times the 11th term. 11 times the 11th term. अब देखो, 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term. See, we have the formula Tn equal to a plus n minus 1d. Okay. Apply this formula for T7. You will get 7 as it is, multiply by what is T7? A plus 7 minus 1 d. Correct? That is equal to 11 times the 11th term. 11 in bracket a plus 11 minus 1 d. Correct? देखो, 7 times the 7th term, that is equal to 11 times the 11th term. Then solve this. You will get 7a plus 6d. Correct? Sorry, 7 in bracket a plus 6d, that is equal to 11 in bracket a plus 11 minus 1 10d. Okay, what is there? 7 a plus 7 minus 1 6d. Okay, 7 in bracket a plus 6d, that is equal to 11 in bracket a plus 10d. Now simplify this one. You will get, see, 7 multiply by 7 in this bracket. 7 into a 7a plus 7 into 6 42d. See, 7a plus 42d, that is equal to 11 into a 11a plus 110d. 11a plus 110d. Okay, therefore you will get, see, 11a minus 7a. Okay, 11a minus 7a plus 110d minus 42d, that is equal to 0. Okay, 11a, देखो 11a इधर हमने 7a को लिया, 110d minus 42d, that is equal to 0. Then you will get 11a minus 7a, 4a plus 110d minus 42d. 110 minus 42, 68d. Okay, 68d, that is equal to 0. Okay, 4a plus 68d, that is equal to 0. Dividing both sides by 4. See, dividing both sides by 4, we get 4a divided by 4a plus 68 divided by 4, 17d.
that is equal to here 0. Suppose equation 1. This is equation 1. Now we have to prove, we have to show that 18th term of an AP is 0. Now see, 18th term of an AP, that is T18 equal to A plus 18 minus 1D. Okay, see, A plus 18 minus 1, 17D. But see here, but A plus 17D is nothing but 0. Therefore, A plus 17D 0. Right here from equation 1. Therefore, T18 equal to 0. Correct? देखो फर्स्ट दिया है 7 टाइम्स द 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, देन शो दैट इट्स 18th term is 0. Okay, see, 7 times the 7 term is equal to 11 times the 11 term. In this way you can prove T18 equal to 0. Okay, जिसको लिख कर लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है. चलो अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन. आज हमें इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही टारगेट करना है. ध्यान में रखो, इसको टारगेट करना है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. चलो क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना? देखो मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग तो बहुत है. ध्यान में रखो, सिर्फ उसमें खुद को ऐसा बिजी रखना पड़ता है. हाँ, लेकिन ध्यान में रखो, जब आप एनी एग्जाम्पल आप जो अपने मन से सॉल्व करते हैं ना, बराबर, तो जो चेहरे पे, आपके चेहरे पे जो खुशी दिखाई देती है, उससे ज्यादा खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी. लेकिन वो सेल्फ ढूंढना चाहिए आंसर. ओके, टेक्स्ट बुक में या डाइजेस्ट में देख कर समझ में. चलो दूसरा एग्जांपल. फॉर एन एपी, देखो दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है. फॉर एन एपी show that for an AP show that EP plus P plus 2Q that is equal to 2 times P plus Q. See here we have to show for an AP. Okay, AP में क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है हमें. जैसे nth टर्म होती है वैसे ये TP है, pth टर्म प्लस P plus 2qth term that is equal to twice P plus qth term. Okay, first of all we have the formula. Which formula? Tn or Sn. Sn formula is also known as Gauss formula. Okay, ध्यान में रखो. देखो solution. First of all, let first term be A, common difference be suppose D. समझो फर्स्ट टर्म A कंसीडर करते हैं, कॉमन डिफरेंस D. ओके, एंड वी हैव द फार्मूला. वी हैव कौन सा फार्मूला है? Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. ये फार्मूला है हमारे पास, बराबर. लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? PP. बाद में क्या फाइंड करना है? P प्लस 2Q. और बाद में ये प्रूव करना है. समझना है? तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले TP निकालेंगे. ओके, ये nth टर्म है. नाउ pth टर्म ऑफ एन AP, जैसे nth टर्म है इसलिए यहाँ n यहाँ n. अब pth टर्म, देयरफॉर क्या आएगा? फिर
टीपी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 डी। इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, इक्वेशन 1। बाद में क्या निकालना है, p प्लस 2q टर्म। देखो नाउ p प्लस q टर्म ऑफ एन AP, p प्लस q टर्म ऑफ एन AP क्या आएगा, p प्लस q दैट इज इक्वल, देखो nth टर्म तो हमने pth टर्म निकाली, यानी n को p से रिप्लेस किया। अब n को p प्लस q से रिप्लेस करना है, तो क्या आएगा, a प्लस p की जगह क्या लेना है आप, p प्लस q माइनस 1 d बराबर। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। ओके, बाद में क्या निकालेंगे, p प्लस q टर्म। ओके, p प्लस q हो गई। ओके, ये देखो ये p प्लस 2q है, तो हम पहले इधर p प्लस 2q ही निकालेंगे, p प्लस 2q। जैसे सीक्वेंस यहाँ दी है वैसे सॉल्व करेंगे। आप p प्लस q निकालो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। p प्लस 2q, यहाँ भी क्या लिखेंगे, p प्लस 2q माइनस 1। ओके, देखो pth टर्म p प्लस 2q टर्म, बाद में p प्लस q टर्म निकालेंगे, इसको इक्वेशन। नाउ अब क्या निकालेंगे, नाउ p प्लस q टर्म ऑफ एन AP क्या आएगा, p प्लस q दैट इज इक्वल टू a प्लस p प्लस q माइनस 1 d। इसको हम इक्वेशन 3 नाम देंगे, बराबर है। अब देखो नाउ हमें क्या प्रूव करना है, tp प्लस 2q। ये देखो हमारे पास tp है, p प्लस 2q है, बीच में क्या है, एडिशन। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equation 1 and 2 we get what, see tp plus t p plus 2q, tp plus t p plus 2q that is equal to, see addition of left hand side like that, addition of right hand side, here a plus p minus 1d plus a plus p plus 2q माइनस 1d। देखो a प्लस p प्लस 2q माइनस 1d। ओके, दैट इज इक्वल टू, यह कहां से लिखा, एडिंग 1 एंड 2। अब a प्लस a क्या आएगा, 2a प्लस p माइनस 1d प्लस p प्लस 2q माइनस 1d एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा, अब देखो 2a प्लस a एक टर्म है, यहाँ कितने टर्म्स हैं, टोटल कुल मिला के कितने टर्म्स है, कौन बताएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ओके, अब सेकेंड टर्म p माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, दोनों में कॉमन क्या है, d है। ये 2a एज इट इज रखेंगे। ओके, 2a को एज इट इज रखेंगे, p माइनस 1 प्लस, अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे p माइनस 1 प्लस ये p प्लस ये 2q माइनस 1, इन दोनों टर्म का कॉमन क्या है, ये d बाहर लिखेंगे। हो गया, नेक्स्ट स्टेप देखो 2a प्लस p प्लस p 2p, ओके, 2q एज इट इज, p के बाद p प्लस p 2p
टू क्यू एज इट इज, -1 -2 d एज इट इज। अब देखो 2a प्लस 2p 2q -2 कॉमन क्या आएगा, क्या निकलेगा बाहर, ब्रैकेट के बाहर क्या निकाल सकते हैं, 2 तो अंदर क्या आएगा p। देखो 2p में से 2 बाहर निकाला, p रह गया, 2q में से 2 बाहर निकाला, q रह गया, -2 में से 2 बाहर निकाला, 1 रह गया, ये d को d। ओके, अब देखो अब कितने टर्म्स है यहाँ कितने टर्म्स थी, 1 2 3। अब कितने टर्म्स बचे, देखो 1 एंड 2, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है 2, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस, देखो इस टर्म में से, फर्स्ट टर्म में से 2 बाहर निकाला, a रह गया। अब 2 इन ब्रैकेट p प्लस q माइनस 1 इंटू d, ये सेकंड टर्म है, इसमें से भी 2 बाहर निकाला, तो इधर क्या रह गया p प्लस q माइनस 1 d। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अब ये 2 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ये देखो इक्वेशन 3 में हमने लिखा है d p प्लस 2q इज इक्वल टू a प्लस p प्लस q माइनस 1d, a प्लस p प्लस q माइनस 1d। यानी इस सभी पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, t p प्लस q से, t p प्लस q से। ओके, और हमें यही प्रूव करना है। देखो, और ये कहां से लिखा हमने, ट्वाइस टी पी प्लस क्यू फ्रॉम इक्वेशन 3। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ध्यान में रखो, दिखने में यानी ये कैसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, यानी वो हिंदी में कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और ट्रिगोनोमेट्री लेसन वैसा ही है, इतना बड़ा पहाड़ खोदने का है और इतना छोटा सा चूहा निकलेगा, जैसे 2 cos थीटा बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है, वैसे ही। अब नेक्स्ट जिसको भी लिख के लेना है वो स्क्रीनशॉट निकाल सकता है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे, नए नए क्वेश्चन है। ओके, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है। अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे, चलो अब थर्ड क्वेश्चन, कौन सा है थर्ड क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको किसी भी लेसन की कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपका उसका आंसर मैं आपको बाद में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके, ध्यान में रखो। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड देखो, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चालू है हमारा, कौन सा चालू है लेसन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस लेसन में से 2 क्वेश्चन देखे हमने, थर्ड क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर एन एपी, कौन सा क्वेश्चन, ये ओल्ड सिलेबस में था क्वेश्चन, फॉर एन एपी, फॉर एन एपी, कौन सी एपी है, 1/6, 1/4, 1/6, 1/4, 1/3, and T20 and
S10 क्या फाइंड करना है? T20 एंड S10 यानी हमें इस एग्जांपल में प्रूव नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू of T20 and S10 means we have to apply here both formula. First nth formula means nth term वाला formula और Sn वाला formula. Okay, देखो first of all we write answer. See what is the given sequence or arithmetic progression here? देखो in an AP कौन सी AP है? In an AP 1/6 1/4 1/3 in this AP since A is equal to means first term is 1/6 D equal to 1/4 means T2 minus T1 1/4 minus 1/6 that is equal to see 24 6 minus 4 that is 2/24 that is equal to 1/12. What is the value of D? D is 1/12. Now we have to find first T20. Okay, 2020. Now we have Tn equal to A plus n minus 1 D. Therefore कौन सा फार्मूला है? पहले T20 यानी Tn फार्मूला यूज करो. nth टर्म, जनरल टर्म, कॉमन टर्म, लास्ट टर्म, कुछ भी बोलते हैं उसे nth टर्म बोलते हैं, Tn बोलते हैं. ओके, चलो Tn इक्वल टू हमें क्या निकालना है? T20. T20 इक्वल टू व्हाट इज द A? A 1/6. What is the A? 1/6 plus what is the n here? Here 20 minus 1. What is the D? D 1/12. That is equal to see 1/6 as it is. 1/6 as it is plus 20 minus 1 19 into 1/12. देखो 1/6 plus 19 into 1/12 आ गया. अब सॉल्व करो. 1/6 plus 19/12. देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो एलसीएम निकालो. ओके, एलसीएम को ज्यादा टाइम लगेगा. इजी मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. चलो 12 1 जा 12 plus 6 into 19 114 divided by 6 into 12 72. Okay, then you will get 12 plus 114 divided by 72. 12 plus 120 that is 126 divided by 72. Okay, both are divisible by 18. 18 7 जा 18 4 जा. Then answer will be therefore T20 that is equal to 7/4. फर्स्ट आंसर क्या है आपका? 7/4. ओके, अब दूसरा क्या निकालना है? दूसरा निकालना है S10. कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? कौन सा फार्मूला? यस, Sn वाला. ओके, नाउ sum of the first n terms वाला क्या फार्मूला है? We have the sum of the first n term that is Sn equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. Okay, we have to find Sn for S10. We have to find Sn for S10. Therefore S10 that is equal to n10/2. Correct? S10 n/2 10/2 in bracket 2 multiply by what is the value of A? What is the A? 1/6 plus what is the n? 10
10 minus 1 into d. What is the d? 1 upon 12 into 1 upon 12 bracket close. That is equal to, see, 10 upon 2, 5. 10 divided by 2, 5. 2 1s are 2, 3s are. Means here will be 1 upon 3 plus. See here, 9 multiplied by 1 upon 12. That is equal to 5 in bracket 1 upon 3 plus. See here, 3 3s are 3, 4s are. Means here remains 3 upon 4. Then your answer will be 5 into cross multiplication. 4 1s are 4, 3 3s are 9. Means 4 plus 9 divided by 12. That is equal to, see here, that is equal to 5 multiplied by 4 plus 9, 13 divided by 12. 13 divided by 12, that is 65 divided by 12. Therefore, S10 is equal to 65 upon 12. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपका दिमाग उसमें स्पीड आ जाएगा, ध्यान में रखो। फर्स्ट, क्योंकि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा उतना आपका स्पीड आएगा। ओके, ध्यान में रखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मैथ्स के लिए। हाँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में आए इसलिए डरने का नहीं, जैसे हम रेगुलर एग्जांपल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने का, पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं रहता है, ध्यान में रखो। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा अलग। इफ द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ, इफ the sum of fifth term and ninth term, fifth term and ninth term of an AP is, if sum of the fifth term and ninth term of an AP is 72. Okay, and the sum of seventh term and 12th term, the sum of seventh term and 12th term is, seventh term and 12th term is 97. Find an AP, क्या फाइंड करना है? AP। ओके, इसमें ज्यादा तो डाउट किधर आता है मालूम है आपको? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने क्या सीखा आज तक कि जब सम ऑफ द फर्स्ट ईयर टर्म्स आएगा। ओके, सम ऑफ द, देखो लेकिन सम का एसन के फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम? जब एक शब्द होना चाहिए उधर, कौन सा? सम ऑफ द फर्स्ट ये शब्द होगा तो आप एसन फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ क्या बताया है? सम यानी
एडिशन ऑफ द फिफ्थ टर्म, बट ऐसा नहीं बताया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या बताया उन्होंने? सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड 9th टर्म, ऐसा बोला उन्होंने। ऐसे नहीं बताया सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स। उन्होंने क्या बताया, इधर क्या दिया है, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड 9th टर्म। ओके, देखो let first term that is equal to a, suppose common difference क्या कंसीडर करेंगे, d, okay, and we have the formula, which formula, fifth term, 9th term, then 7th term, okay, and 12th टर्म। ऐसे ने बताया। और सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट ये शब्द आएगा ही उधर, तभी आप ऐसे फॉर्मूला यूज करना है आपको, ध्यान में रखो। सम ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से लेकर समझो ये 10 है तो फर्स्ट टर्म से लेकर 10 टर्म्स तक ये 10 लिखते हैं। वैसे यहाँ बताया है सम ऑफ द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ 5 टर्म्स नहीं, फिफ्थ टर्म एंड 9th टर्म। ओके, देखो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ द फिफ्थ एंड 9th टर्म, यानी फिफ्थ टर्म एंड 9th टर्म, इन दोनों की सम कितनी है, 72 है, 72। इन दोनों की सम कितनी है, 72। इसको सॉल्व करो, T5, Tn का फार्मूला, T5 के लिए क्या है फार्मूला, a प्लस 5 माइनस 1d प्लस, इसके लिए क्या है, जरा मैं इधर लिखता हूँ, देखो T5 के लिए आएगा a प्लस 5 माइनस 1d प्लस, T9 के लिए आएगा a प्लस 9 माइनस 1d दैट इज इक्वल टू 72। अब देखो a प्लस 5 माइनस 1 4d, a प्लस 4d प्लस a plus 9 minus 1 8d that is equal to 72. Then you will get a plus a 2a plus 4 plus 8 12d that is equal to 72। देखो 2a plus 12d equal to 72। Okay, this is the equation 1, this is the equation 1। Okay, अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखो ये फर्स्ट कंडीशन है, सम ऑफ द फिफ्थ एंड 9th टर्म, आपको ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ गया। चलो अब दूसरी कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन हियर, वेरी इजी है। सेकंड कंडीशन सम ऑफ द 7th एंड 12th टर्म, सम मींस एडिशन, देखो सम T7 प्लस sum of the 7th term and 12th term, ये देखो T12 that is equal to nothing but 97। see 7th 12th 97, solve this one। T7 means what is the Tn formula for T7, a plus 7 minus 1d plus T12 के लिए क्या आएगा, a plus 12 minus 1d that is equal to 97। ओके, अब देखो a प्लस 7 माइनस 1 6d प्लस a प्लस 11d दैट इज इक्वल टू 90, दैट इज इक्वल टू 97। अब सॉल्व करो, a प्लस a 2a प्लस 6 प्लस 11 17d दैट इज इक्वल टू 97, इक्वेशन 2। ओके, अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में यहाँ पे 2a, यहाँ पे भी क्या है 2a, यानी दोनों वेरिएबल a, यहाँ वेरिएबल a है, d है, a है d है। फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है, a, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, सेम है। अब एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो आइडेंटिफाई कैसे करने का, अगर दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। देखो
हमारा रूल क्या बताता है, इसको साइन है प्लस, इसको साइन है प्लस, 2 को साइन प्लस है, 2 को साइन, जो कोएफिशिएंट सेम है उनके साइन देखो प्लस है, तो हमारा रूल क्या बताता है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, बराबर है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो एक ट्रिक ध्यान में रखो, अगर प्लस 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 होता है तो उसके प्लस के अपोजिट आप, यानी प्लस प्लस का रिजल्ट क्या है प्लस, तो उसके अपोजिट क्या है, अगेंस्ट जाने का, अगेंस्ट क्या है माइनस। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। समझो इधर प्लस है और इधर माइनस होता, यानी एक को साइन प्लस होता, एक को माइनस होता, तो हमारा रूल क्या बोलता है, प्लस माइनस माइनस होता है। मालूम है ना आपको, इसके पहले मैंने बताया ना, प्लस 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 होता है, यानी प्लस यानी दोस्त और माइनस यानी दुश्मन। ध्यान में रखो, मैंने बताया ना आपको, क्या बताया था, 2 मिनट में बताता हूँ, क्या बताया था, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, यानी प्लस को हम क्या कंसीडर करते हैं, दोस्त, दोस्त और दोस्त। ओके, मैंने ये ध्यान में कैसे रखने का, इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, क्या बताया था, कौन बताएगा, आपको याद है, नहीं याद है, चलो अच्छी बात है, याद नहीं तो अच्छी बात है। चलो दोस्त, यानी ये पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव, और हमारे बारे में पॉजिटिव सोचने वाला हमारा दोस्त होता है या दुश्मन होता है, दोस्त होता है, बराबर है। चलो तो ट्रिक क्या है, दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन होता है। देखो, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे अमेरिका और चीन दुश्मन दुश्मन, इंडिया और चाइना दुश्मन दुश्मन, तो इंडिया और अमेरिका क्या हो गए, दोस्त। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। फिर से बताता हूँ, दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन, दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ओके, चलो अब हमारे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, इसको साइन प्लस है, इसको साइन प्लस है, तो प्लस 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 होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त, तो क्या करना है हमें, उसके अपोजिट करना है, सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या मिलेगा आपको, देखो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 2a plus 17d that is equal to 97, और यहाँ पे है 2a plus 12d that is equal to 72। सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में मालूम है आपको, ये साइड क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, बराबर है। ओके, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस। चलो 97 में से 72 माइनस करो, क्या आएगा, 25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो 17 माइनस 12 क्या आएगा, 5d, देयरफॉर d क्या आएगा, 5 आएगा, आएगा ना 5। चलो d क्या आ गया, 5। नाउ पुट इन d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 2a plus 12d इक्वल टू 72। देखो 2a plus 12d इक्वल टू 72, d की जगह 5 रखो, क्या आएगा, 2a plus 12 into d, डायरेक्ट लिखता हूं मैं 60, दैट इज इक्वल टू 72। ओके, तो इसके आगे क्या आएगा, इधर लिखता हूं, देखो 2a इक्वल टू 60, 2a plus 60 इक्वल टू 72, therefore 2a इक्वल टू 12 आएगा।
ओके, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, बराबर है। तो ए इक्वल टू 72 माइनस 16 12, ए इक्वल टू 6। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड एपी निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो देयरफॉर T1 इक्वल टू 8। अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, T1 T2 T3 एंड T4, बस हो गई, 4 तक निकालो, आपका आंसर बराबर होगा। चलो T1 निकाला, क्या आएगा, A 6 है, तो T2 क्या आएगा, T2 क्या होता है, बाद में T1 प्लस D होता है 6 प्लस कितना है D 5, दैट इज क्या आएगा 11। T3 क्या होता है, T2 प्लस D होता है, T2 कितना है 11, बाद में D कितना है 5, तो क्या आएगा 16। T4 निकालो, T3 प्लस D आएगा, तो क्या आएगा 16 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 21। तो आंसर क्या आएगा, हमें पूछा है एपी लिखो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज, कौन से रिक्वायर्ड एपी, कौन से हो गए 6 11 16 21, क्या होगी 6, 11, 16, 21 डैश डैश। ओके, समझ में आया, इजी क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऐसा लिखा, तो ये सिर्फ फॉर्मूला यूज करो। यहाँ लिखा है सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म। ओके, समझ में आया, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो, चलो हाँ, देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि हमें मालूम है टी एन ए और डी की वैल्यू देने के बाद आपको एन निकालना आता है, बराबर। वैसे ही ये सिर्फ फॉर्मूला दिया हो, एन की वैल्यू दी है आपको। ओके, डायरेक्ट हम एग्जांपल देखेंगे। देखो बहुत इजी एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर, हाउ मेनी टर्म्स, सॉरी ऐसे लिखेंगे, इन एन एपी, इन एन एपी। देखो कौन सी एपी है, उन्होंने एपी भी दी है, इन एन एपी 7, 14, 21 डैश डैश, इन एन एपी 7, 14, 21 डैश डैश, हाउ मेनी टर्म्स आर टू बी considered, how many terms are to be considered for getting the sum, how many terms are considered for getting the sum 5740। यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स की सम, कितने टर्म्स की सम 5740 आएगी। यानी किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, देखो ए दिया है, बी भी है, ये सम यानी एसएन दिया है, क्या रह गया, हाँ ये रह गया। ओके चलो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। क्या
शुरुआत कैसे करेंगे, पहले लिखो गिवन एपी इन एन एपी, कौन सी एपी है आपको दी है वो 7 14 21 dash 7 14 21. Okay, here what is here a 7 है, फर्स्ट टर्म 7 है बराबर है। डी क्या दिया है उन्होंने, हाँ ओके, डी दिया है 14 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7। और क्या दिया है, ये क्या है एन है या एस एन है, एस एन है बराबर। होशियार है, आप भी होशियार होने लगे, वैसे पहले से आप होशियार है, सिर्फ आप खुद को ऐसा कम समझते नहीं समझते। अरे मैथ्स इंसान ने बनाया है बराबर, मैथ्स इंसान ने बनाया है, इंसान को मैथ्स ने नहीं बनाया, ध्यान में रखो। हाँ चलो, ये सेम क्या है 5 7 4 0, 5 7 4 0। ओके, नाउ वी हैव द फार्मूला। कौन सा फार्मूला है हमारे पास बताओ, हाँ ओके, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 d। ओके, इसमें वैल्यू पुट अप करो, एस एन क्या है 5 7 4 0। व्हाट इज द n here, we have to find n upon 2 as it is 2 into a, what is the a 7 plus n as it is, d क्या है d also 7 ब्रैकेट क्लोज। ओके, समझ में आ रहा है। एस एन की वैल्यू पुट अप करो 5 7 4 0 n upon 2 into 7 n minus 1 into 7। ओके, अब देखो 5 7 4 0 एज इट इज रखो, 5 7 4 0 हियर दिस 2 इज 2 कहाँ है डिनोमिनेटर में, और राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, इधर क्या रह गया n रहेगा n, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 7 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करो प्लस 7n माइनस 7। देखो n एज इट इज 2 डिवाइड इधर आया तो मल्टीप्लाई होगा। चलो 2 इंटू 7 14, 7 इंटू n 7 माइनस 7। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा 11,480, 11,480। n एज इट इज 4 माइनस 7 7 आएगा, और ये 7n ऐसे रहेगा, तो आंसर आएगा 7n प्लस 7। समझ में आया। अब देखो यहाँ 7n है, यहाँ 7 है, कॉमन क्या निकलेगा, हाँ 7 निकलेगा। ये देखो 11480, यहाँ 7n आया तो अंदर रहेगा n प्लस 1, करेक्ट। देखो 7n n प्लस 1, ओके, ये 7 मल्टीप्लाई इधर आया तो बाद में डिवाइड करो, 11480 डिवाइडेड बाय 7, क्या बचेगा n प्लस 1। इसको डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 4 44, 7 6 जा, then 2 28, 4 जा, then 0, that is equal to n square plus n। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा आपका n square plus n प्लस माइनस 1640 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया है। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से, फार्मूला मेथड से, ओके, या फिर कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, कौन से भी मेथड से सॉल्व करो। ओके, चलो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1640 के 2 फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस क्या है, एडिशन क्या होनी चाहिए 41 1640। ओके, क्या आएंगे, क्या फैक्टर्स आएंगे इसके बताओ ना। चलो
इसके फैक्टर्स आएंगे 41 एंड 40। क्या आएंगे? 41 एंड 40। आप बोलेंगे सर आपने तो लिख दिया लेकिन कैसे निकालने का? वो मैंने पिछले लेक्चर में वो बताया है मैंने आपको वो वीडियो आप देखिए। ओके, फिर 7th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे उसके फैक्टर्स निकालने का वगैरह वगैरह। चलो 41 एंड सी हियर साइन प्लस बिग नंबर प्लस हियर माइनस मींस माइनस हियर। ओके, सी हियर माइनस 1640 क्योंकि यहाँ +1 है, +1 इंटू माइनस 1640 माइनस 1640। यहाँ का साइन बड़े नंबर को प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस दूसरे नंबर को माइनस आएगा। देखो बड़े नंबर को इधर का साइन देना है और जो बचा साइन इसके हिसाब से देना, इसको प्लस इसको माइनस, तो इसको आएगा माइनस। चलो तो फैक्टर्स क्या हो गए? n² प्लस 41n माइनस 40n माइनस 1640 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब बताओ n² प्लस 41n कॉमन n ब्रैकेट में रहेगा n प्लस 41। ओके, अब यहाँ कॉमन क्या निकलेगा? इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं, ध्यान में रखो, कभी भी ध्यान में रखो। यहाँ अब ये इसमें से कॉमन निकाला हमने, ये समझ में आया? इसमें से कॉमन निकालना इजी है, लेकिन अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, कैसे फाइंड करने का? देखो यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है? देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, -40n है बराबर है। इसमें से इस ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या आई है? n आई है। चलो n, तो n यानी यहाँ के फर्स्ट टर्म को यहाँ के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, जो बचेगा वो यहाँ लिखो। ओके, और ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट लिखो, डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी गलत नहीं होगा। चलो क्या आएगा? -40 आएगा, ये -40 यहाँ का ब्रैकेट उधर लिखो, क्या आएगा? n प्लस 41 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो फर्स्ट फैक्टर आएगा n प्लस 41, दूसरा आएगा n माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n प्लस 41 इक्वल टू 0 और n माइनस 40 इक्वल टू 0 बराबर। तो n आएगा -41, n इधर आएगा 40, लेकिन n क्या है? n क्या है? हाँ, here n is a term and that term is never negative, okay, because n is always positive because it is position of that number place, okay, therefore it is neglected। ये क्या करना है? इसको नहीं एज्यूम नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। क्यों? since n is a term, n is a term और term is never negative, okay, therefore n का आंसर क्या आ गया? ओके, इसका मतलब क्या है? इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप 40 टर्म्स लेंगे तो उसका सम कितना आएगा? 5740 आएगा। ओके, देयरफॉर n इक्वल टू 0। देयरफॉर आंसर कैसे लिखेंगे? 40 टर्म्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर गेटिंग द सम 5740। ओके, और बहुत सारे एग्जांपल है। अब अगले वीडियो में आपको मैं वो एग्जांपल और नए इजी सिंपल मेथड से और अच्छी तरह से बताऊंगा। ओके, थैंक यू।